As Indians, we have all heard about the Jallianwala Bagh massacre, also known as the Amritsar massacre, that took place on April 13th, 1990, where under the command of General Dyer, British police slaughtered a big number of protesters. Many people refer to it as the biggest massacre in Indian history. But on 8th of September 1990, 1980, in independent India, in a small mining town in the then Bihar state, now Jharkhand state, the police entered a hospital. The Bihar military police entered a hospital and slaughtered a number of Adivasi people who had come there for medical treatment. Not even in war is a hospital attacked. But these people were indigenous people, Adivasi people. They had assembled that day in the Goa mines marketplace to demand jobs for lands taken and forests destroyed by the mining company ISCO, Indian Iron and Steel Company. Goa Mines is in the heart of the Saranda forest, which today again is in the news as it is the area where the government of India has started Operation Green Hunt to flush out Maoist ultras. The people of Saranda, all forest dwellers, had assembled that morning, 8th of September 1980, at the Goa Mines marketplace, an enclosed area, and they were going to start their public meeting. Under the leadership of the Jharkhand Mukti Morcha, their leaders Devendranath Maji, Bhubaneswar Mahato, Shailendra Mahato, Bahadur Urao, and many others had walked up to the stage to address the people when the police and a magistrate came on the stage and told them that they cannot have the meeting because the government has promulgated section 144. So the leaders started leaving the stage. They were not allowed to address their people. And as they were leaving the stage, the Bihar military police, paramilitary wing of Bihar government, one of the police took a stick and beat Bhubaneswar Mahato on the stage. As the people did not like to see their leader being treated like this, they all stood up. The BMP police then opened fire on this crowd of people, mass crowd, and they shot 4 Adivasis. Seeing this, there was a panic and Adivasis responded with their bows and arrows. A few policemen were killed or injured, and then the Bihar military police went berserk. They started shooting at random any moving person they saw, and the Adivasis started running helter and skelter
and for some time it was mayhem. Then the police took their injured to the Goa Military Hospital some furlongs away, and the Adivasis took their injured to the same hospital. The hospital authorities were given strict instructions to first treat the police personnel, the military personnel, and they started treating them. In that hospital, Miss Lily Minge was on that day, at that very hour, a staff nurse, and she was a witness to what happened in the hospital that day. Didi, can you tell us the story, if you remember, as you remember it, what happened? शुरू से बताएं, मैंने कि जो मेरा जो 3 बजे ड्यूटी गए हम 3 बजे हम ड्यूटी गए, तो हम ऑफिस में थे, तो आवाज सुने भागने का आवाज सुने, तो बोले क्या हो रहा है, नहीं हम पहले फायरिंग का आवाज सुने, और उस समय मेरे साथ स्टाफ था, वो लोग एक्स मिलिट्री, तो हम बोले कि फायरिंग हो रहा है, तो बोला नहीं सिस्टर फायरिंग नहीं है, बोले नहीं फायरिंग हो रहा है। तब तक में आवाज सुनाई दिया, बोले कि भाग रहा है कोई, तो हम फीमेल वार्ड तरफ गए देखने के लिए कि क्या हो रहा है, तो हमको गाड़ी का आवाज सुनाई दिया कि गाड़ी आ रहा है। हम बोले खड़ा होकर के हम सुने नहीं उधर तो नहीं जा रहा, हॉस्पिटल तरफ ही आ रहा है, तो हम फीमेल वार्ड तरफ में बरामदा में खड़ा होकर हम देखे कि नहीं जीप तो आई ठीक गेट में, हॉस्पिटल का गेट में, और वहां से एक मिलिट्री मैन उतरा, उसका यहाँ तीर लगा हुआ था, यहाँ तीर लगा हुआ था, वो झूल रहा था अंदर में, वो आया ऐसे, हम बोले ना फायरिंग हो रहा है, उसको लेके तुरंत ड्रेसिंग में पहुंचे। उसके बाद तो तुरंत धायने के एक के बाद पुलिस मान लोग आ रहा है इंजर्ड किधर, और मैंने कि वो लोग तीर लगा है कहीं इंजर्ड सब। उसके बाद वो लोग आउटडोर गया नीचे, और वहां से भी ले करके पुलिसमैन लोग को आ रहा है, और तो फिर सब खिड़की दरवाजा बंद करके सुबह डॉक्टर लोग तो था ही ड्यूटी में, ऑपरेशन रूम में ड्रेसिंग रूम में वो लोग का ट्रीटमेंट हो रहा है, हाँ ट्रीटमेंट हो रहा है, और जो वहाँ इन पेशेंट था क्रिटिकल छोड़ करके बाकी सबको डिस्चार्ज कर दिया, उनके लिए जगह बना दिया, और सब बीएमपी मैंने की पुलिस ही था, किसको इधर लगा किधर इतना याद नहीं है, इधर उधर मैंने कि सब इंजर तीर लगा वाला। तो उसके बाद में फिर ऐसे ही खिड़की तरफ से देखे कि नहीं अंदर में हल्ला हो रहा है, तो खिड़की से सही झांक के देखे, तो हमको तो ठीक से मालूम नहीं, हम लोग तो ड्रेसिंग रूम तरफ में थे ना, पीछे तरफ में, तो बोला कि वो लोग खटिया में एक इंजर्ड को 4 आदमी लेकर के आया था ट्रीटमेंट के लिए, आदिवासी लोग एक आदिवासी को लाया था, इंजर्ड था, और ठीक मेलवाड़ी के सामने में वहां पर एक शीशम का गाछ था, याद करते इधर वाला गेट के पास, वहां पर ना, वहां पर उसको रखा था, तो कैसे वहां पर फायरिंग शुरू हमको पता नहीं है, लेकिन वहां पर वो लोग को मारा। कितना लोग? मैंने कि 4 जन तो धो करके लाया था, और एक तो इंजर्ड था, और कितना आया था उतना नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद एक तो बरामदा तो इतना ऊंचा केवल है ना, एक जन ना भाग गया इधर में अंदर में ना, उसको बरामदा ही उसको शूट किया, अभी भी उसका गड्ढा है, उसको शूट किया। और उसके बाद फिर हमको तो इधर भी देखना उधर भी देखना ना, इधर उधर होते देखे, एक जन को हम देखे, लेकिन एक आदिवासी को, एक मिलिट्री मैन हम कभी नहीं जिंदगी में देखे थे, उसको राइफल का कुंदा से पीछे तरफ से उसको खूब मारा,
और वो गाछ के मिलिट्री मैन आदिवासी को मारा, आदिवासी को मारा। आदिवासी को मारा, और वो अपना बचाव ऐसे कर रहा है ना, ऐसे करके ना कनपट्टी में उसके ऊपर का शूट कर दिया। उसको देखे, उसको हम शूट करके देखे। और अभी इतना दिन के बाद में अगर वो आगे मेरे सामने में आएगा तो पहचान तो नहीं सकेंगे, लेकिन उसका चेहरा तो है मेरा मन में ऐसे यंग समय का। वो हुआ तो हम बोल भी रहे थे कि देखो होली क्रॉस के अंदर में फायरिंग नहीं करना है। हाँ, रेड क्रॉस, हाँ रेड क्रॉस, होली क्रॉस नहीं, रेड क्रॉस के अंदर में फायरिंग नहीं करना है, तो हॉस्पिटल है। हाँ, तो पूरा का और भी था को दूसरा मिलिट्री वाला था, वो लोग बोला हमको सिस्टर आप चुप रहिए, अभी वो लोग गुस्सा में है, गुस्सा में है कहीं आपको भी कुछ ना कर दे बोल करके। फिर हम तो ड्रेसिंग रूम तरफ चले गए। वो हुआ जब पूरा मैंने कि सब ये हो गया, सबको ड्रेसिंग वेसिंग करके ये कर दिए, जमीन में जिधर में सबका सुला दिया सब कोई को। उसके बाद हम लोग रात करीब नहीं 10 साढ़े 10 बजे हम लोग घर लौट गए। हाँ, घर लौट गए। दूसरा दिन सवेरे ड्यूटी में आके दिख रहे हैं ना, तो सामने में तीर लगा हुआ है हॉस्पिटल का दीवार में। हाँ, कल तो ये नहीं था, ये कहाँ से ये हुआ? तो वो लोग प्रूव करने के लिए कि आदिवासी हमारे ऊपर में अटैक किया तीर से, इसी से हमने गोली मारा, ये स्टोरी वो बताया। उसके बाद दूसरा दिन थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करके ये करके, और एक दो था ना वो बहुत मैंने कि बिहारी लोग तो, हाँ, एक जन का तो मेरे साथ झगड़ा भी हो गया, बहुत हमको बहुत कुछ बोला। तो फिर बाद में दूसरा कोई आकर के बोला सिस्टर मत बताइए कि हेडक्वार्टर तक चला जाएगा तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा। इंग्लिश भी है था बोलने के जैसे ना। तो हम लोग तो एक्सरे के लिए कि ड्रेसिंग के लिए भेजना है, तो जैसे केस दे करके ना, जिसको कम लगा उसको बाद में भेजेंगे, जिसको ज्यादा लगा उसको पहले भेजेंगे ना। तो एक ना उखड़ गया कि हमको पहले नहीं भेजा, वो सबको पहले भेज रहा है, वही लोग है, अब हमारा आदमी कोई नहीं है, सब एमपी पुलिस ही है। तब फिर बाद में सेकंड डे नहीं थर्ड डे वो लोग जगह से रेफर कर दिया, बता दिया सबको। और कोई आदिवासी इंजर्ड को ट्रीटमेंट नहीं दिया? नहीं मिला। एक ही जन को लोग लेकर के आया था, वो भी कैसे सुने ना कि वो लोग उधर से भागते हुए ना गैरेज वो लोग पहुंचा था, गैरेज पहुंचा था। तो गैरेज वाला सब बोला ना कि इधर से जाओ हॉस्पिटल ले जाओ करके। तो वो लोग खटिया में उसको गैरेज तरफ से, क्लब नहीं है, क्लब रोड उधर से होकर के तो आती है हॉस्पिटल तरफ में ना, तो लोग हॉस्पिटल लाया था उसको खटिया में। हम देखे नहीं थे, लेकिन आप हो सकता है आपका आंख से नहीं देखे हैं, मगर बाद में चर्चा हो रहा था कि आपको मालूम है कितने लोग हॉस्पिटल में मरा? 4 जन लेकर के आया, 1 2 जो इंजर्ड था उसको तो मारा ही मारा, 4 जन खुटिया में लेकर 4 जन धो के लाया था, उसको मारा। मतलब 5 जन को आपका देखा हुआ नहीं, 1 जन को मरते हुए हम देखे। मगर 4 जन सुनिए, 4 जन धो के लाया था और 1 तो खटिया में था, 5 हुआ ना, तो 5 को मार दिया, 5 को मार दिया। हुआ क्या था वहां स्टेज में, क्या हुआ नहीं हुआ तो नहीं जानते हैं। तो वो लोग को बोला ना कि तुम लोग मीटिंग मत करो, तुम लोग जाओ, वापस जाओ। हाँ, तो वो लोग तो ये रास्ता से, वो लोग पहले जमा हुआ था वहां एरोड्राम में जमा हुआ था, वहां से मार्च करके वो लोग बाजार गया था। तो बाजार में लोग को बोला कि जाओ बोल करके बोला ना, तो वो लोग ना आ रहा था इधर ही से, हम जो रास्ता से जाएंगे वही रास्ता से ना लौटेंगे। तो बीएमपी पुलिस ना उसको रोक दिया, इधर से नहीं तुम लोग उधर से जाओ। तो उधर से तो बाजार का उधर में तो बोल रहे कि जो उधर ही जी हाटिंग, उसके बाद फिर उधर ऊपर दौड़ा, उधर तो इतना जंगल, नदी है, जंगल है, हम लोग रास्ता नहीं जानता है, कहीं हम लोग वहाँ का आदमी नहीं था, हम लोग सब बाहर का था, है ना, वहाँ तो लोकल नहीं था ना, दूर का था ना। तो लोग को रास्ता मालूम नहीं, चिड़िया मनोरपुर से। हाँ,
तो वैसे सुने जैसे वहां पर और आदमी लोग ने बोलकर सुने बाद में जैसे धक्का धक्की ऐसे ऐसे हो रहा था, ऐसे धक्का धक्की हो रहा था ना, तो लोग टीयर गैस छोड़ा। तो मिलिट्री मैन को ना जो छोड़ा उसको ना मालूम है, हमको तो नहीं मालूम कि टीयर गैस छोड़ा है, हम तो बोलेंगे कि फायरिंग किया है। और उसी में कुछ डंडा उंडा भी लगा होगा, आदिवासी लोग माने कि गिरा तो बोले कि अटैक किया है, मारो तीर धनुष। This incident where a hospital was attacked and Adivasis were killed within the hospital premises has not received much attention and few people know about it. In fact, there has been no first information report, FIR, lodged against the Bihar military police. On the contrary, there were cases against many people, all the activists, all the leaders, and they fought for 20-25 years in court and they were all acquitted in those cases. This happened on 8th of September 1980. सेकेंड हाफ में, Yes, Second half. second half after the noon hours. But this incident should not be seen as an isolated incident. The previous day, on 7th of September, in the Tata Steel mining town of Nomundi, 20 kilometers before Goa mines, villagers of 3 villages had assembled at the Tata Steel airstrip at Kuttingta to present a memorandum to the then chairman of Tata Steel, Rusi Modi, who was arriving that morning in the company aircraft. The security of Tata Steel refused to allow the villagers to meet Mr. Modi, and even before his aircraft could land, they drove away all the Adivasis who were there and they beat up some of them, and a scuffle arose where the Adivasis responded and beat up some of the security people. Rusi Modi's flight aircraft could not land and had to go back to Jamshedpur. I was told later on by a very important government official, an IAS officer, who was a top official in the government, that Rusi Modi that minute wirelessed the Chief Secretary of Bihar at Patna and told him, this movement has got to be crushed. This movement of the Adivasis has got to be crushed. And immediately, within a few hours, on the 7th of September, I was living in Nomundi at that time, in a small house just opposite the gate of the mines, and my house was surrounded by the same Bihar military police. This is one day before the Goa firing, and I was arrested and taken into custody. So, as I was on my way to Goa, the Superintendent of Police, SP, came, and the SDO, one Mr. Patak, both came to my house fully with machine guns and a big group of Bihar military police. They took me to the police station where I was kept that evening,
and in the middle of the night transferred to Chaibasa police station. In the mid 1990s, I was in Patna for some work with the same SP who had arrested me, Rameshwar Urao, who by then had become the DIG or IG, that is the highest post of a police official. And he greeted me very warmly, and he was all praise for me and the work I was doing. And he told me something which I would like to tell you all today, as very few people know that the firing in Goa was because Rusi Modi demanded Bihar police take action. Anyway, what happened that evening on 7th, according to Dr. Rameshwar Urao, was that he was told by the Tata officials that they should release me from the police station and let me go home, and they would take care of me after that. When Rameshwar Urao heard that, the first thing he came to the police station and he transferred me to Chaibasa police station, where the next day I was sent to Chaibasa jail. Had Rameshwar Urao not done that, had he released me from the police station, on my way home, the disco goons or their security people would have bumped me off. The next day, when we entered, we were 4 of us. One other person was Sawan Horo, who is now deceased. When we entered the Chaibasa district jail, Singhbum district jail at Chaibasa, we heard about the Goa firing. And the next day, in the jail, for the next 3 days, we saw people, injured people, being brought and kept in the jail. I saw a man with a bullet right through his chin. I saw another man with a bullet through his spine. Many had bullets in their hands and legs. No treatment. These were people who they were just wearing a towel around their waist. They were people who were not killed in the Goa hospital. They were people who were not killed at the Goa market. What happened later was the Bihar military police started entering all the villages in Saranda forest, and they started taking the men, shooting them. They started raping the women. According to our calculations, and this was supported by the same IAS officer, Mr. K.B. Saxena, one of the stalwarts of Indian Administrative Service, who told us that according to Bihar government records, over 50 people were killed during that 1 week of massacres that took place in the villages. This is how independent India treats its indigenous people. This is nothing but ethnic cleansing, which continues today in the form of Operation Green Hunt in the same Saranda forest. Lily Minch comes from the Urao tribe. Her father was a miner.
and they know how their people have suffered. I thank you for this interview. इतना तो पता नहीं था जी फिर हम लोग को ये सब बात है, हम लोग को तो पता नहीं था 7 तारीख को क्या हुआ उसको। उसी दिन का उन लोग तैयार था, उन लोग का प्लान था कि थाना तो बाहर था उस समय, थाना से लौटेगा रात को, तो उस समय स्ट्रीट लाइट्स कुछ नहीं था, रास्ता में हमको उड़ाने का बात। मगर हम जानते थे कि अगर हमको छोड़ेगा अभी हमको ये, तो मेरा प्लान था कि थाना पीछे में जंगल है, जंगल होके मगर ये तो रमेश्वर उन्होंने बात किया, उनको बचाया। क्या बोलते हैं उसमें, तो वहाँ रहता था ना, रोड किनारे, सरकार ना, हाँ शॉप ना। ये 7 तारीख इधर का क्या तो नहीं मालूम, लेकिन मेरा ये 7 तारीख के बारे में मेरा सिर्फ ये है कि टिस्को का हाथ है गोवा पर। गोवा कांड के बाद 1 हफ्ता लगातार पूरा सरंडा फॉरेस्ट में गोली सब था ना, घर घर घुस के रेप किया और मर्द लोग को गोली से मारा और औरत लोग को रेप किया। बाद में तो वो लोग ना बहुत दिन तक, खाली 1 हफ्ता के बाद नहीं, कितना दिन तक चला। इधर में बोलता है ना कि हम लोग सरकार का है, बीएमपी पुलिस ना घर ये करके ना बहुत आसपास गांव सब में ना बहुत ये किया। हाँ उन लोग का क्या बोलेंगे, घुस जाता था घर में, और वो लोग ना रात को भाग जाता था घर, गाँव मतलब घर दरवाजा छोड़ कर लोग जंगल में छिप के रहता था, करता था लोग, बहुत ये हुआ है। आता था हॉस्पिटल सब में, इधर उधर बाजार सब में आता था ना, तो बताता था क्या करेगा, इधर में ये कर रहा, पुलिस कर रहा है, उधर में ये कर रहा है, अब इससे बचे कि उससे बचे। कोई बोलता अपने को झारखंड, इधर में झारखंड वाले लोग वाला लोग बोल करके बोलते थे ना, पुलिस वाला ले कर। तो गोवा का पुलिस लोग को ना ये लोग से बंद कर दिया था मैंने कि इन लोग को निकलने नहीं दिया, और वो बोला अगर हम लोग जाते ना तो कांड नहीं होता, माने कि ये ठेला ठेली सब नहीं होता, लोग समझा के इन लोग को ये कर देते। तब उन लोग का तो प्लानिंग ही था। तो उसके बाद में ना फिर दूसरा दिन जब हम गए ना, तो जो रात नाइट शिफ्ट पे जो ड्यूटी में था ना स्टाफ, उन लोगों को बताया कि मैंने कि घूम करके पूरा गोवा में घूम करके कहाँ जहाँ डेड बॉडी मिला ना, उसमें पुलिस का भी था, पुलिस लोग उतना नहीं था, आदिवासी लोग इधर उधर जो डेड बॉडी था ना इधर उधर सब तरफ घूम करके ना सबको लादा ले करके आया हॉस्पिटल में। उसके बाद ना उन लोग को डंप किया, कितना डेड बॉडी तो नहीं बोले, ट्रक बोलने के जैसे, फिर सबको ये किया, फिर ले गया गोवा में ही, पोस्टमार्टम भी नहीं किया, गोवा ही में हॉस्पिटल से, मैंने कि सबको ला करके हॉस्पिटल में रखा था ना, मैंने कि गाड़ी में लाद के लेके आया, इधर उधर घूम करके ला करके रख रहा है, तब फिर बाद में ट्रक में सबको डंप करके ले गया रात्रि को। कहाँ ले गया, कहाँ लेके मालूम नहीं किसी को, मॉर्निंग हम लोग ड्यूटी पे तो नहीं थे, लेकिन नाइट शिफ्ट वाले ने बताया ऐसे, और जो बताया वो मर गया। What happened to all the bodies of all those people killed? As I said, Dr. K.V. Saxena told me that more than 50 people were killed. What happened, I was in jail. We were transferred to Hazaribagh jail, about 100 of us. We were there for about 3-4 months. When I came out, I met Father Matthew Ariparambal, the founder of Tribal Research and Documentation Center at Chaivasa. And what he told me was much more shocking. He said that the bodies were all brought to the Chaibasa District Hospital for post-mortem, and then they did not return the bodies to the families, but they took all the bodies and dumped them
on the banks of the Roro River near Chaivasa. And the police were given money to buy firewood to cremate these people. The police who were given the money stole that money. They did not buy firewood, and those bodies were lying there and they were eaten by dogs. Matthew has written this somewhere, this document is there, that even after killing our people, the Bihar state government did not allow their families to bury them according to the indigenous cultural traditions, and they left them to be eaten by dogs. Roshni Minch was a very young girl on 8th of September when the Goa firing took place. She is the younger sister of Lily Minch, and she will narrate some of her experiences of that day and later on. रोशनी, आपको क्या याद है गोवा कांड के बारे में? उस दिन तो सब जुलूस में निकला था सही सलामत। उसके बाद शांति से जाके वहाँ मीटिंग किया। मीटिंग के आधा घंटा बाद ही भगदड़ मच गया था वहाँ। मीटिंग कहाँ पर थे? गोवा मार्केट में? गोवा मार्केट में था वहाँ मीटिंग। और तुम्हारा घर कितना दूर है मार्केट से? 1 किलोमीटर दूर। 1 किलोमीटर नहीं होगा? आधा किलोमीटर। फिर हाँ, भगदड़ मच गया। उसके बाद वही हल्ला सुन के निकले थे तो देखे कि पूरा बीएमपी फोर्स लोग दौड़ा रहा है और पब्लिक भागा हुआ है। जो जुलूस में था वही लोग दौड़ रहा है। रेल लाइन सामने तो था ही, तो रेल लाइन के ऊपर से दौड़ रहा है सब, और वो लोग पूरा दौड़ रहा है, वो लोग को दौड़ा रहा है। बीएमपी वाला लोग था। इधर बाजार तरफ थोड़ा सा झांके थे, रोड में ही दिख रहा था। होटल के पास ही गाड़ी रुकी थी, चेदी होटल के पास में ट्रक बीएमपी का। और इधर बाजार में कांड हुआ, पूरा मारपीट शुरू हो गया था, बहुत भयंकर हुआ था। वो तो बाद में हम लोग को जब जाने के लिए मिला तो देखे थे खून खून था रास्ता में इधर उधर। अब कैसे क्या हुआ था तो वही बात बात में पता लगा था कि मार के सब सिर उर फोड़ दिया था। पब्लिक का भी, बीएमपी वाला लोग को भी मारा था, और बीएमपी लोग का भी तीर उर लगा था। और तो जैसे कि आपने लाश देखा? लाश नहीं, घायल लोग को देखे थे। घायल लोग को देखे थे। बीएमपी घायल कि आदिवासी घायल? बीएमपी घायल। आदिवासी लोग को तो तुरंत वो लोग ढोके ले गया था, लाइन से भी उधर ले गया, बाजार तरफ से भी छिपा दिया बोल के बता रहा था। उधर जो बाजार में रहता है वो लोग बता रहा था कि कैसे मारा। आप बाद में सुना होगा, देखा भी नहीं होगा, मगर सुना होगा कितना आदिवासी लोग को मारा? आदिवासी लोग घायल हुआ था, नहीं में उतना संख्या तो नहीं मालूम है, लेकिन जैसे कि एक था बरगद पेड़ पास में, वहाँ तो बीएमपी का था। जो तीर में से अटका था? तीर में नहीं, तीर में अटका था एक ठो को, तो वो फर्स्ट टाइम मारा था उसको। बीएमपी वाला था? बीएमपी वाला था। और बीएमपी वाला को एक जन को मार के गिराया था, तो उसको ला के बरगद पेड़ जगह वहाँ पर पत्थर से कुछ दिया था आदमी लोग, वही था। उसके बाद उधर गली घुसने वाला देना साइड गली, उधर एक जन को मारा था, तो वो तो पब्लिक को मारा था बीएमपी वाला लोग। हाँ, उसको शायद घायल हुआ था तो कुछ गोली वोली लगा था, तो बैठा हुआ था।
तो मैंने गुमटी क्या के पास आदिवासी था, आदिवासी था। गुआ का नहीं था ना? नहीं, गोवा का नहीं था वो, आदिवासी था वो। तो उसको गोली लगा था तो वो बैठ गया था वहीं पर, उसको कोई लेने नहीं सका वो पब्लिक। तो वो बोला हमको घुसाओ बोल कर, लेकिन डर से कोई नहीं घुसाया उसको। तो वहीं बैठा हुआ था गुमटी के पास। तो बीएमपी वाला लोग आया, देखा तो पेट में शायद लगा था गोली, तो अंतरी सब निकल गया था। उसी का तो वो नाम बता रहा था बाद में। हाँ, हाँ, उसी को बता रहा था उसी दिन का कि क्या कि ना पेट में गोली लगा था, उसी दिन इंटेस्टाइन सब निकल गया था। हाँ, उसी दिन अब कोई अंदर में नहीं कर, आदिवासी था अंदर में कर रहा था ना। तो ना फिर वहाँ का लड़का लोग को बुलाया बीएमपी, हाँ पुलिस बुलाया और बोला ना कि इसको पकड़ो, इसको पकड़ो और उसको ना पैर से घसीट के ना उसको उहाटिंग ना, बुढ़ा उहाटिंग से ना, हाँ, वहाँ हाँ, से हाँ, उधर से उसको ना इधर में लाया, मेन रोड में लाया, हाँ वहाँ लाया। और उसके बाद ना उसको ना घसीट करके ना उसको छेदी होटल तक घसीट के लाया। हाँ, छेदी होटल तक घसीट के लिया, पैर से उसको पकड़ पैर के। से। वहीं का लड़का लोको लोकल मतलब लड़का, जैसे हम लोग जानवर का लाश हाँ, को हाँ, जैसे जानवर, वैसे। हाँ, वैसे हाँ, उसका इंटेस्टाइन उसका अंतरी सब निकला हुआ, निकला सांस हुआ। चल रहा है उसका। तो उसको वो बैठ के ना वो डाल रहा था पेट में, हाँ वैसे डाल रहा था। उसको तो बीएमपी छेद- वाला लोग बुला के उसको ले गया, वैसे और घसीट लेके के घसीट लिए के वहीं का एकदम लोकल आदमी लड़का लोग को मार बुला दिया दिया। फिर। उसको फिर उसी जीप को में खाली डाला, लेके थे। जीप में डाला और उसको जीप नहीं था, ट्रक था। ट्रक था, ट्रक था, बीएमपी ट्रक था। और उसको फिर मार दिया। और ना वो बता रहा था वैसे, क्या कि हम रोड तक निकले थे, दादी थी ना, हाँ, तो दादी बोल रही है कहाँ फटेका बज रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है, शादी हो रहा है, देखने जाएंगे। तो उसी को गरिया के घुसा रहे थे। हम ही उलगने गए थे रोड तरफ, तो उसी समय उसको देखे थे। हाँ, उसी को नाम बताया था, इसी बात सिस्टर को करके वो नाम में मर गया। और बारिश हल्का हल्का, बाद में तो हल्का बारिश हुआ रात था। को, रात को हुआ था। हाँ, तो उस समय हम रेल आ गए लाइन थे। में दौड़ रहा था जब, तो वो लोग अशरू कैसे उसको फेंका था, लेकिन वो लोग काम नहीं आया, बेकार हो गया बम सब। बहुत भीड़ था उस समय लाइनों पर से। वो तो बोलते हैं ना, सिनेमा में देखे, बुक में पढ़े, लेकिन आदमी को ऐसे मारते हुए नहीं देखे थे। बाप रे बाप, फिर किसी से करके देखे, फिर हमको सहाया नहीं, हम लेसन बम चले गए। उसी के बाद तो फिर हॉस्पिटल में हुआ था ना, कहता थे रात तो उस समय। वो बाबा ड्यूटी से ऑफ आ रहा था, वो लोग उधर ही से आ रहा था। तो फिर बोला कि नहीं, हॉस्पिटल में भी फायरिंग हो रहा है बोल करके, फिर बाबा लोग उधर से ये होकर टर्निंग हो करके ऐसे इधर से आया ना, इधर से घर गया, ड्यूटी से लौट रहा था बाबा। ऐसे बहुत खराब। 35 साल हो गया और न्याय नहीं मिला। कांड हुआ ना। न्याय नहीं मिला और कोशिश कर रहे हैं कि इसको इतिहास से हटाना है, मगर अभी जो आप लोग बोले हैं वो रहेगा। एक दिन ये वीडियो खुलेगा और कम से कम हमारे बच्चा लोग कोई ना कोई खड़ा हो। इसको सुन के वो लोग जानेगा कि हमारे लोग को, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एथनिक क्लेंसिंग, मतलब महामारी या क्या बोलो, जो भी बोलो, आदिवासी लोग को खत्म करने का क्या, आदिवासी जात को खत्म करने का कितना कितना कोशिश की है। किया है। केवल यहाँ पर होता है कि दूसरा जगह क्या रही है, दूसरा जगह लोग ट्राइबल लोग भी ऐसे करता है। हर जगह में हुआ है, कनाडा में, अमेरिका में, दक्षिण नहीं वो तो है ना। अभी जैसे मेरा कहने का है ना, जैसे कि रांची को। इंडिया में, हाँ इंडिया में यहाँ पर अभी हम लोग नागपुर में हम लोग आदिवासी, उरांव, मुंडा, खड़िया, ये सब हम लोग आदिवासी होते हैं ना। हाँ, तो बिहार में भी तो होगा वो लोग आदिवासी, हाँ वहाँ का लोकल, यूपी में भी होगा, पंजाब का भी वहाँ का है ना, अलग अलग। वैसे साउथ में भी, उड़ीसा में भी होगा, तमिलनाडु में होगा, केरला में होगा, इस सब में होगा। वहाँ का मूल आदिवासी तो होगा ना, तो उन लोगों को किस वजह से होता है? हाँ,
उन लोग का औरतों को रेप करता है, उन लोग का जमीन को लूट लेते हैं, उन लोग को भगा देते हैं। उधर भी इससे होता है। हाँ, अभी केरला में कितना आदिवासी लोग था? अभी केरला का आदिवासी जनसंख्या कितना है? 4 लाख बस। गोवा शहर में 4 लाख से ज्यादा, गोवा माइंस गोवा माइंस में अभी पूरा इंडिया का आदमी लोग है।